Yes, very good afternoon, boys and girls. Wow, बहुत दबा के खाए दिखता सब के सब. Very good afternoon, all of you. Yes, let us continue our discussion on the chapter theory of demand and supply. जहाँ पे theory of demand and supply के अंदर हमने unit 1 theory of demand start किया है, जहाँ पर अब तक के पार्ट में हमने demand क्या होता है, demand is constituted with 3 elements of desire, ability and willingness समझा था. फिर इसके बाद हमने समझा demand is expressed in terms of quantity, price and time. Then we saw the different determinants of demand, and we also understood how demand is function of determinants of demand. Then after that we saw law of demand, which is propounded by Professor Alfred Marshall, who states in the law that as the price of the product increases, demand for the product decreases. As the price of the product decreases, as the price of the product decreases, demand for the product increases. Hence he states as per the law of demand that there is an inverse relationship between price of the product and its quantity demanded. After understanding the law of the statement of the law, we also understood the schedule and diagram where we saw the demand curve is downward sloping from left to right. This negative slope of the demand curve is due to the inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. After understanding the law of demand, we also saw various rationales, or you can see the reasons why the demand curve is downward sloping from left to right. The law of diminishing marginal utility, Hicks Lane effect, that is income effect, substitution effect, price effect, etc., etc. Yes or no? After understanding the rationales or reasons why the demand curve is downward sloping from left to right, we also understood the exceptions of law of demand. As per the law of demand, as the price of the product increases, demand for the product decreases. As the price of the product decreases, demand for the product increases. Hence, as per the law of demand, there is inverse relationship between price of the product and its quantity demanded, and the demand curve in case of law of demand is downward sloping from left to right. Vice versa applies in the exceptions to law of demand, whereas the price of the product increases, demand for the product increases. Where the price of the product decreases, demand for the product decreases. There is direct positive relationship between price of the product and its quantity demanded in case of exceptions to law of demand. Hence the demand curve in case of exception to the law of demand is upward sloping from left to right, as we saw in case of conspicuous goods, conspicuous necessities. Then the first exception, that is Giffen goods, right? What has Robert Giffen said? That there is direct positive relationship between price of the commodity and quantity demanded. We also understood what are inferior goods. Goods who have negative relationship with the income of the consumer is called as inferior goods. When the income of the consumer increases beyond a level, the demand for a commodity decreases, which are called as inferior goods. Then after understanding both inferior and Giffen good, we also understood the statement that all Giffen goods are inferior goods, but all inferior goods are not Giffen goods. Yes or no? Hi, na? Yes or no? Right? After this, we understood what is individual demand. The demand of a single individual in the market is called as individual demand. The collective demand of all the individuals in the market at a given price of a commodity is called as market demand. Both the individual demand and market demand curve are downward sloping from left to right. Yes or no? Agree or not? Hi or na? Right? Lastly, we saw the variations in demand. The variation in demand can be understood with respect to price and other factors. When we understand the variation with respect to price, it is either expansion or either it is contraction. When the price of the product decreases, demand for the product increases. Such an increase in demand is called as expansion of demand. Expansion of demand leads to downward movement on the same demand curve. Yes or no? Yes or no? When the price of the product increases, demand for the product decreases. Such decrease in demand is termed as contraction of demand, and contraction of demand leads to upward movement on the same demand curve. Yes or no? Hi or na, baba? Hi or na? Then what did we see? Lastly, we saw the increase or decrease, that is variation in demand due to factors other than price. Whenever there is variation or changes in the demand due to factor other than price, it is either termed as increase in demand or either it is termed as decrease in demand. Whenever there is increase in demand, the demand curve, whenever demand increases due to factor other than price, such increase is called as increase. Such variation is called as increase in demand. Increase in demand leads to rightward shift in the demand curve. Whenever there is decrease in demand due to factor other than price, such a variation is called as decrease in demand, and decrease in demand leads to leftward shift in the demand curve. Yes or no? Hi or na? So this was the last concept regarding demand variations which we have learned in the last chapter. Are we clear? Yes. किसी को कोई doubt है? Right. चलो now let's move on to the very important part. सबसे ज़्यादा MCQ
जो पूछे जा सकते हैं आपके पूरे इस चैप्टर में वो इसके ऊपर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंपैरेटिवली अभी तक जो मैंने पार्ट आपको पढ़ाया है बच्चों, इन सभी पार्ट के ऊपर जो एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं उसे सॉल्व करने में आपको उतनी कठिनाई या दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये वाला इलास्टिसिटी का जो पार्ट है इसको समझने में एक तो डिफिकल्टी है, दूसरी बात इसके एमसीक्यूज भी थोड़े ट्रिकी रहते हैं और उसको आंसर करना भी डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन वो तब जब आपको कोई टीचर ठीक तरह से नहीं पढ़ा रहा है। आई गेस वट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम मी टिल डेट, आई एम वेरी क्रिस्टल क्लियर इन माई टीचिंग कंसेप्ट। एंड बहुत लोगों को नॉट ओनली इन परबनी अक्रॉस इंडिया, अगर आप देखो, मैं देखता हूं किस तरह से टीचर प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ाते हैं, इलास्टिसिटी पढ़ाते हैं। whenever they teach demand elasticity, maximum students are confused in this particular chapter only. Same applies with 12th में भी देखो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे डिफिकल्ट चैप्टर स्टूडेंट बोले कौन सा जाता है, तो बोले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग की खिड़कियां खुली रखनी पड़ती है। तो दिमाग की खिड़कियां खुली कर दो, सीट की पेटी बांध लो, सिट इरेक्ट, सिट प्रॉपरली, ताकि नींद वींद ना आए। थोड़ा सा सीधा सीधा बैठो और आंखों को मसल लो, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, राइट? ओके, ठीक है। प्लीज कंसंट्रेट विद द कंसेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट विथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जाने से पहले मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या समझा? लॉ ऑफ डिमांड में हमने समझा द डायरेक्शन ऑफ चेंज। व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड? द डायरेक्शन ऑफ चेंज. What is the direction of change I am talking about? That when the price of the product increases, demand for the product decreases. When the price of the product decreases, demand for the product increases. Okay. So what is the direction of change is understood by the law of demand. कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होगा, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। My next question to you is, does the law of demand quantify the amount of change in demand due to change in price? Yes or no? क्या कहीं पर भी लॉ ऑफ डिमांड में ये दिया गया है कि अगर 20% प्राइस बढ़ जाता है, 20% प्राइस अगर बढ़ जाता है तो 20% डिमांड कम हो जाएगा? कहीं पर दिया है ऐसा? अगर प्राइस 50% कम हो जाता है तो डिमांड 100% बढ़ जाएगा, ऐसा कहीं बताया है? नहीं। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमें यह बताता है कि डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या होगा। क्या बताता है हमें? डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या होगा। यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड क्या होगी? कम होगी, हाँ या ना? और प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। एक के बढ़ने से दूसरा घट जाएगा, एक के घटने से दूसरा बढ़ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ चेंज लॉ ऑफ डिमांड में हमको समझ में आता है। बट डज द चेंज और डज द लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज? क्या लॉ ऑफ डिमांड हमें यह बतलाता है कि कितना प्रतिशत डिमांड बदल रहा है ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस? व्हाट इज द एग्जैक्ट परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंजेस इन प्राइस? यस और नो? नो. सो कैन आई से द लॉ ऑफ डिमांड only states the direction of change. It fails to quantify the amount of change. Yes or no? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? Law of demand help us to understand the direction of change, but my dear friend, it fails to quantify the amount of change. Quantification of the amount of change is not possible with the help of law of demand, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम है। प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगा, कितना कम होगा वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। प्राइस बढ़ा दिया तो डिमांड कम होगा, कितना कम होगा वो नहीं बताएगा। प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताएगा। लॉ ऑफ डिमांड ये बोल सकता है कि बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा बताएगा क्या? नहीं। सो वी कैनॉट क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज, बट व्हाट इज क्रूशियल, द क्रूशियल पार्ट इज टू अंडरस्टैंड द क्वांटम ऑफ चेंज। मैं बिजनेस चला रहा हूं, मेरे बिजनेस के अंदर लेट से कि मैं ये पाउच बनाता हूं, ये पाउच अभी मैं 20 रुपए में मार्केट में बेच रहा हूं, राइट? इसकी 100 डिमांड है, अभी 20 रुपए का मैं 25 रुपए में बेचने जा रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द पाउच। लॉ ऑफ डिमांड बोलेगा बेटा तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी डिमांड कम होगी, लेकिन मुझे ये जानना है
कि मैं अगर 5 रुपए से प्राइस बढ़ा भी दूं तो डिमांड एक्चुअली होता भी कितना कम है। लेट से पहले मैं 100 पाउच बेचता था, पहले मैं 100 पाउच बेचता था, 5 रुपए कीमत बढ़ाने की वजह से अब मैं 98 पाउच बेच रहा हूं, तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि प्राइस बढ़ाने का डिसीजन सही है। समझ में आया? किसी भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर को डिसीजन लेने में आसानी होगी जब उसे पता होगा कि क्वांटिटी चेंज कितना है। बात समझ में आ रही है? अब समझ लो इस पाउच की कीमत 20 रुपए है, 20 रुपए से ये जो पाउच है, मैंने चलो 20 रुपए का पाउच सोच रहा हूं कि 15 रुपए कर दो, 5 रुपए सस्ता कर दो और डिस्काउंट दे दो, सेल बढ़ जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलेगा? यू हैव रिड्यूस द प्राइस, ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइस देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, यस और नो? बट डज इट क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज? क्या लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि तुम 5 रुपए से प्राइस कम करो तो तुम्हारा डबल हो जाएगा सेल? लेट से मैं पहले 100 पाउच बेचता था, सॉरी इंक्रीज होगा, सॉरी नॉट घटेगा, इंक्रीज होगा कि प्राइस कम किया है हमने। 20 रुपए का पाउच जब बेचता था तब मैं 100 पाउच बेचता था। कितने? 100 पाउच। ठीक है, अब मैं प्राइस जो है 15 रुपए कर रहा हूं। आई एम रिड्यूसिंग द प्राइस, आई एम रिड्यूसिंग द प्राइस, दैट इज अराउंड 25% आई एम रिड्यूसिंग। 20 रुपीज माइनस 25% इज 15 रुपीज, बरोबर? तो मैं 25% जो है प्राइस कम कर रहा हूं, लेकिन पाउच पहले 100 बिकते थे, अब 102 ही बिक रहे। तो क्वांटिटी चेंज ऑफ डिमांड कितना है? इट इज हार्डली 2%। प्राइस में 25% कम कर रहा हूं, प्राइस में 25% कम कर रहा हूं, बरोबर? लेकिन डिमांड कितना बढ़ रहा है? सिर्फ 2%। तो प्राइस कम करने में कोई होशियारी है? प्राइस कम करने में कोई होशियारी है? नहीं। लेकिन ये डिसीजन कब कर ले पा रहा हूं मैं? जब मुझे क्वांटिटी ऑफ चेंज समझ में आता है। ये डिसीजन लेने के लिए मैं समझ कर पा रहा हूं कि भाई मेरा 2% डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस 25% मैं कम कर रहा हूं, तो प्राइस कम करने में फायदा क्या हुआ? ये फायदा या नुकसान मुझे कब समझ में आ रहा है? व्हेन आई एम ट्राइंग टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज इन डिमांड, यस और नो? डज लॉ ऑफ डिमांड हेल्प अस टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज? नो, it only tells us the direction of change. It only tells us the direction of the change, yes or no? है ना? So for understanding the quantification of change, there is one tool. जब हमें स्केल मेजर करना होता है, राइट, किसी की लेंथ निकालनी होती है तो हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं, यस और नो? किसी भी पेज पे तुमने एक लाइन बनाई है, उसको अगर लेंथ उसकी गिनना है सेंटीमीटर में, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्केल का। तो स्केल क्या है? वो मेजरिंग टूल है, हाँ या ना? स्केल क्या है? वो मेजरिंग टूल। अब फर्नीचर वाला ये टेबल बनाता है तो वो टेप लेके आता है, टेप से नाप करता है। वो टेप, ये जो नाप लेने की जो वो टेप रहती है, दैट इज अ टूल विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। इट इज अ टूल विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ, हाँ या ना? यस और नो? दोनों यस और नो? तो उससे क्या होगा? हमारा पूरा सा लेंथ जो है वो समझ में आएगा, हाँ या ना? यस और नो? राइट। तो इसी तरह से जो क्वांटिटी चेंज है डिमांड में, वो मेजर करने के लिए एक टूल है, एंड दैट टूल इज नथिंग बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट टूल इज नथिंग बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the tool which is used to measure the quantity of change. It is a tool which is used to measure the quantity of change. अभी ओके? कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन समझ में आया? कैसे क्वांटिफिकेशन करते हैं, कैसे हम चेंज को मेजर करते हैं, हर चीज अब एक एक करके मैं सिखाऊंगा। सिंपल में इलास्टिसिटी क्या है? ये कैसा टूल है? इलास्टिसिटी इज अ टूल विच इज यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ चेंज, right? Elasticity measures quantity of change. Change is measured by elasticity or quantified by elasticity. Is it okay? चलिए, elasticity of demand. The law of demand states the changes in demand, or it states the direction of change. Determinants other than price also state the direction of change. But यहां पर जो वर्ड इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर इलास्टिसिटी की जगह हम चेंज लिखेंगे तो कैसा पढ़ेंगे? चेंज ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ टूल विच इज यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन डिमांड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? चेंज. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो चेंज ऑफ डिमांड. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज दैट टूल विच इज यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन डिमांड. अभी क्लियर? अभी क्लियर? As we cannot quantify the amount of change in demand with the help of law of demand, we use elasticity of demand to calculate the same. We use elasticity of demand to calculate same. Therefore, elasticity of demand is the tool which is used to measure the quantity of change in the demand due to the change in different determinants of demand. Whether it be change in demand due to price, whether it be change in demand due to income, whether it be change in demand due to prices of related goods, whatever it may be, whatever are the changes in the demand due to any determinant, that change can be measured with the help of elasticity of demand. See, बहुत सारे डिटरमिनेंट है. प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज वन डिटरमिनेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज वन डिटरमिनेंट, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन इज वन डिटरमिनेंट, फिर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज वन डिटरमिनेंट. यस और नो? इनकम ऑफ कंज्यूमर इज वन डिटरमिनेंट. हर डिटरमिनेंट की वजह से डिमांड चेंज होता है, हाँ या ना? तो हर डिटरमिनेंट की वजह से डिमांड कितना चेंज होता है, ये कौन मेजर करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कैसे? और हर जो डिटरमिनेंट है उसके हिसाब से हर इलास्टिसिटी का नाम अलग है. प्राइस बदलने की वजह से डिमांड बदलता है, हाँ या ना? सो दैट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्राइस बदलने की वजह से डिमांड बदलता है, हाँ या ना? अग्री? एज द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, एज द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस. दिस चेंज इन डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यस और नो? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से डिमांड में चेंजेस होते हैं, हाँ या ना? रिलेटेड गुड के प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज होता है, हाँ या ना? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइसेस में प्राइस चेंज की वजह से इनके डिमांड के अंदर चेंजेस होते हैं, हाँ या ना? यस और नो? रिलेटेड गुड्स के वजह से डिमांड में चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है, हाँ या ना? राइट? तो उस चेंज को अगर हमें क्वांटिफाई करना है, वी डू इट विद द हेल्प ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या बोलते हैं उसको? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम बदलने की वजह से डिमांड बदलता है. इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ता है, इनकम कम होती है तो डिमांड कम होता है. अग्री? अग्री? दिस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इट इज अ टूल विच इज यूज्ड टू मेजर द चेंज इन डिमांड. जिस डिटर्मिनेंट की वजह से चेंज मेजर किया जा रहा है उसका नाम सामने लगा दो. जैसे प्राइस का है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम की वजह से तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सब्स्टिट्यूट की वजह से है तो देन क्रॉस इलास्टिसिटी. तो अलग अलग नाम है, क्या क्या है वो एक एक करके अब हम यहां पर देखेंगे. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू द चेंजेस इन वन ऑफ द वेरिएबल इन विच डिमांड डिपेंड्स, और यू कैन से डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. Elasticity of demand measures the changes in demand due to changes in one of the variables, that is determinants of demand. More precisely, elasticity of demand is a percentage of change in quantity demanded divided by the percentage change in one of the variable. Don't worry, अभी जितना concentrate कर सकते हो concentrate करो. जैसे ही प्राइस इलास्टिसिटी का एक न्यूमेरिकल ले लिया तो आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है? नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मेजर किया जाता है? Now what did I say? Law of demand just tells us the direction of change. प्राइस कम होने की वजह से डिमांड कितना बढ़ेगी वो बताता है क्या? नहीं. बताता है क्या? नहीं. इट डजंट क्वांटिफाई. सो क्वांटिफाई करने के लिए टूल कौन सा यूज करते हैं हम? इलास्टिसिटी. सो इलास्टिसिटी से किस तरह से क्वांटिफिकेशन ऑफ चेंज समझ में आ सकता है उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, percentage change in demand upon percentage change in variable. Now this variable can be price, this variable can be related goods, this variable can be taste and preference, this variable can be advertisement, this variable can be income of consumer. जो जहां जहां पे वेरिएबल बदलेगा सिर्फ डिनोमिनेटर में वेरिएबल की जगह उसका नाम आ जाएगा. जैसे अभी हम पहले प्राइस समझेंगे. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जगह नाम क्या देंगे उसको हम? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. समझ में आ रहा है? एक न्यूमेरिकल होने दो और भी पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बाबा इलास्टिसिटी जो है क्वांटिफाई करता है द अमाउंट ऑफ चेंज.
Is it okay? Is it okay? Right? Now let's start with first type of elasticity of demand. Now there are various types of elasticity of demand. Normally students confuse between types of price elasticity and types of elasticity. दो कंसेप्ट है यहाँ पे. अभी मैं प्राइस इलास्टिसिटी सिखा रहा हूं. उस प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है. जो अभी ऊपर कंसेप्ट पढ़ाई वो इलास्टिसिटी है. उसके टाइप में पहला टाइप कौन सा है? प्राइस इलास्टिसिटी. सेकंड क्या है? इनकम इलास्टिसिटी. थर्ड क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी. फोर्थ क्या है? एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी. क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम में, बोर्ड्स में. प्लीज स्टेट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. स्टूडेंट वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी की टाइप लेके आ जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन वाइज भी ये पार्ट. अभी जो इलास्टिसिटी पढ़ा रहा हूं ये एंड होगा एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी के साथ. जैसे ही एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी खत्म हुआ, जैसे ही एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी खत्म हुआ, आपके बोर्ड के और 13 मार्क पक्के हो गए. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 13. बाय एंड ऑफ इलास्टिसिटी कंसेप्ट वी विल ऑलरेडी बी कवरिंग 13. So we'll be already prepared with 26 marks of your 12th standard economics. That to be in more depth. सिर्फ एक ही चीज करना है, थोड़ा इरेक्ट बैठो, स्ट्रेट बैठो, पूरा कॉन्सेंट्रेट करो. क्योंकि अगर प्राइस इलास्टिसिटी समझ गया तो बाकी में कुछ भी नहीं है. इट इज जस्ट रिपीटेड ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन प्राइस. अगर प्राइस नहीं समझा तो इनकम नहीं समझता, क्रॉस नहीं समझता, कुछ नहीं समझता. पहले शुरुआत का अगर ये 10-11 समझो मैं ले रहा हूं, इसको ठीक तरह से समझो तो ही सब चीजें समझ में आएगी, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा. Shall I start with the first type? The first type of elasticity is price elasticity. How do we measure elasticity? Elasticity is equal to percentage change in demand upon percentage change in price. But which variable we are considering now? Price. So इस elasticity को हम क्या बुलाएंगे श्रेया? Price elasticity of demand. क्या बुलाएंगे हम इसे? Price elasticity of demand. So price elasticity of demand is equal to percentage change in demand upon percentage change in price. Yes or no? Now price elasticity can be measured with different methods. ये बहुत गोंधल है यहाँ पे. ये देखो, ये है इलास्टिसिटी, ये है इलास्टिसिटी. इस इलास्टिसिटी के अंदर डिफरेंट इलास्टिसिटी है. जैसे प्राइस इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी है, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी है. राइट? हर जो टाइप है इसके अलग अलग टाइप है. इन इलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक. और हर टाइप के मेथड अलग है. प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास परसेंटेज मेथड है, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड है, ज्योमेट्रिक मेथड है. फिर हमारा कौन सा है इसके अंदर आपको दिया? आर्क इलास्टिसिटी मेथड है. और एक मेथड है हमारा कौन सा है? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड. अब प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स बहुत है और प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए आपको 4 मेथड सिखाऊंगा मैं, जिसमें एक होगा परसेंटेज मेथड, फिर उसके होगा डायरेक्ट मेथड, फिर उसके बाद होगा आपको आर्क इलास्टिसिटी मेथड और फिर उसके बाद होगा आपको पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड. तो थोड़ा सा किचकट है चीज, इट इज नॉट दैट सिंपल. सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट. डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा. अंदर में अंदर, अंदर में अंदर, अंदर में अंदर बहुत इधर खेल है. बहुत बार टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पूछे तो हम मेथड्स कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी लिख के आ जाते, और मेथड्स पूछे तो उसके अंदर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी स्टूडेंट लिख के आ जाते. तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए. लेट्स स्टार्ट विथ. डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है अगर आप रेगुलर हो और अगर आप पूरा ध्यान दे रहे हो तो. इलास्टिसिटी के चैप्टर में एक फाउंडेशन की सबसे बड़ी खासियत ही है, यहां पे अगर तुम एक दिन एब्सेंट रहे तो दूसरे दिन आपको कुछ मिलने लगेगा कि क्या चल रहा है. आप समझ लो आज का प्राइस इलास्टिसिटी मिस हो गया, ना उसको इनकम समझता, ना उसको क्रॉस समझता, ना उसको कोई और बाकी इलास्टिसिटी का टाइप समझता. इसलिए आज का लेक्चर बहुत जरूरी है. इसलिए मैं इतना 5-10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा रुका हूं सभी लोगों के. चलिए, अब मैंने क्या कहा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. इलास्टिसिटी इज द चेंज, elasticity of demand, change of demand, which is measured by percentage change in demand upon percentage change in variable.
Now what is the variable we have considered? Price. So we are measuring this elasticity of demand as price elasticity of demand. Price elasticity of demand is equal to percentage change in demand due to percentage change in price. Now we are trying to measure or quantify the amount of change in demand due to change in the variable, that is price. That can be done with the first method, that is percentage method. पहला मेथड क्या है? परसेंटेज मेथड. पहला मेथड क्या है? परसेंटेज मेथड. ठीक है. परसेंटेज मेथड के अंदर न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको समझा दूंगा. इसके बाद बचे 11 न्यूमेरिकल. 11 न्यूमेरिकल में जो भी सारे क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, जो आपको घर बैठ के करना है. तो घर पे होमवर्क करने से पहले जो राइटिंग वर्क इनकम्प्लीट था वो राइटिंग वर्क कंप्लीट करो और उसके बाद ये पूरे 11 न्यूमेरिकल सॉल्व करो. मुझे कल के कल नहीं चाहिए, मेरे को सैटरडे तक सब चीजें कंप्लीट दिखनी चाहिए. बात समझ में आ रही है? लेकिन जिस दिन का उस दिन कर लो तो फिर क्लास में कुछ समझ में आएगा, लेकिन क्लास में क्या चल रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा ना हो. ठीक है. क्योंकि 11 के 11 न्यूमेरिकल क्लास में डिस्कस करके इतना टाइम अपन वेस्ट नहीं कर सकते. तो पूरा ध्यान दीजिए. अब अपने को क्वांटिफाई करना है द अमाउंट ऑफ चेंज. सो प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो इलास्टिसिटी निकालने के लिए अपने को दो चीजें निकालनी पड़ेगी. पहला क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड. क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड. उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला क्या है? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100. न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100. और चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या है? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. जैसे 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं मालूम है ना? परसेंटेज अगर किसी चीज का निकालना तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 100 से. यस और नो? मुझे 200 मार्क है 400 में से. So 200 divided by 400 multiplied by 100 is equal to 50. That 50 is 50 परसेंटेज. इतना तो बेसिक मैथ्स आता है. आता है ना? नहीं आता तो टॉक टू भक्ति मैम देन. राइट. चलो. So what is the formula for percentage method for calculation of price elasticity? Percentage change in demand upon percentage change in price. What is the formula for calculation of percentage change in demand? New quantity minus old quantity upon old quantity multiplied by 100. Percentage change in price is equal to new price minus old price upon old price multiplied by 100. Okay. So I'll explain you an example. ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के बाद एक एग्जाम्पल मैं आपका यहाँ रफ में यही सॉल्व करवा लूंगा. बाकी वो रफ का फेयर कर लेना घर जाकर और बाद में बचे हुए सारे सॉल्व कर लीजिए. ठीक है. ताकि एक क्वेश्चन तो भी क्लास में आप बिना देखे कर लो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कंसेप्ट मुझे समझ चुका है. नाउ प्लीज पे अटेंशन ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ इलास्टिसिटी क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी विद द हेल्प ऑफ percentage method. We have to calculate price elasticity with the help of percentage method. Now look at the question. When the price of the pen was 100, demand was 10 pen. The quantity demanded was 10 pens. As the price decreases to 50 per pen, the prices has decreased. As the price decreases, law of demand क्या बोलता है? Quantity demanded increases. But does it quantify the amount of change? No, it does not quantify the amount of change. So as the price reduces from 100 to 50, Snehal, go and wash your face. As the price decreases from 100 to 50, its demand increases to 15 pence. Its demand increases to 15 pen. Now calculate price elasticity with the help of percentage method. तो अब जब हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे तब हमें जाकर समझ में आएगा कि क्वांटिटी वाइज
डिमांड में कितना बदलाव हुआ है ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइस फ्रॉम 100 टू 50। 100 से प्राइस मैंने 50 किया है, तो ये जो रिडक्शन इन प्राइस है इसके वजह से कितना क्वांटिटी चेंज इन डिमांड हुआ है, ये अगर अपने को क्वांटिफाई करना है, मेजर करना है, तो उसके लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी को अभी हम कौन से मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं? परसेंटेज मेथड। With the help of percentage method, we are trying to measure the price elasticity, where price elasticity is equal to percentage change in demand upon percentage change in price। सबसे पहले मैंने यहां क्या लिखा है, देखो गिवन जो अपने को क्वेश्चन में दिया है, राइट। एक है प्राइस, दूसरा है क्वांटिटी डिमांडेड। पहले प्राइस कितना था बेटा? 100। क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? 10। अग्री। फिर उसके बाद वहां क्या दिया है? प्राइस इज रिड्यूस टू 50। So my new price is 50. What is my new price? 50. And what is my new quantity? 15. जो पहले था वो मेरा क्या है? ओल्ड है। जो मेरा पहले था वो क्या था? ओल्ड। पीयूष, पहले जो था वो क्या है मेरा? ओल्ड। तो ये क्या है मेरा? ओल्ड प्राइस। नीचे वाला क्या है मेरा? न्यू प्राइस। ये मेरा क्या है? ओल्ड क्वांटिटी। और ये मेरा क्या है? न्यू क्वांटिटी। यस और नो? हाँ या ना? राइट। तो इस हिसाब से मैंने गिवन बना लिया। आप एमसीक्यू छुड़ा रहे हो, नो डाउट यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यूज, बट इवन वाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज इन द रफ वर्क यू कैन डू रफ वर्क। आपको रफ पेज दिया जाएगा, उसके ऊपर रफ वर्क कर सकते हो। रफ वर्क करते वक्त जब भी आपको इलास्टिसिटी का क्वेश्चन पूछा जाए, इस तरह से गिवन देकर ठीक तरह से सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो इसमें एमसीक्यू में गलतियां होने की संभावना नहीं होगी। जो मैं अभी आपको होमवर्क के लिए 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको जैसा मैं फॉर्मेट बोल रहा हूं, मेरे को उसी फॉर्मेट में सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखा हुआ होना, एज इट इज। डायरेक्ट कैलकुलेशन एक्सेप्टेड नहीं है। अभी मैं डायरेक्ट मेथड सिखाऊंगा, सबको बहुत मस्त लगता है, शॉर्टकट में चलने दो, लेकिन जैसा डिटेल में बताया वैसे डिटेल में सॉल्व करो, क्योंकि वैसे डिटेल में अगर सॉल्व करोगे तो आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी। एक बार कंसेप्ट क्लियर किया, बाद में तो कैलकुलेटर चलाना ही है, हाँ या ना? जैसे 11th और 12th अकाउंट्स में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर आप घर बैठ के अकाउंट्स का होमवर्क कर रहे हो, फाइनल अकाउंट कर बैठ के मोबाइल पे या कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर रहे हो, तो तुम मूर्ख हो, क्योंकि वैसा करते हुए आपका 20 मिनट में प्रॉब्लम होता है, फाइनल एग्जाम में बैठोगे तो घंटा भर भी फाइनल अकाउंट टैली नहीं होगा। अगर आप 11 12 का बोर्ड कर रहे हो और अगर उसके अंदर तुम कैलकुलेटर यूज करोगे, तो एक बात याद रखना, ऊपर से ब्रह्मदेव भी आ गए तो भी आपको 100 में से 100 नहीं मिल सकता। जिस स्टूडेंट को कैलकुलेटर की आदत रहेगी अकाउंट्स में 11 12th में, वो कतई भी 100 में से 100 फाइनल एग्जाम में स्कोर नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी स्पीड उस कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट है जो फाइनल एग्जाम में अलाउड नहीं है। तो बनती कोशिश 11 12th का जब भी आप अकाउंट छुड़ाओ, वो जो है क्या उसमें एडिशन माइनस रोज करने का रहता, उसमें कौन से बहुत बड़े बड़े गणित है जो सॉल्व करने के लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है, वो तो सबको आता है, इसलिए छुड़ाने में भी मजा आता है। अलजेब्रा थोड़ी है जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, जो छुड़ाने के लिए लोग का स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, तो थोड़ा सा दिमाग को तान देना पड़ता है। हाँ, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इतना अच्छा अकाउंट्स में, बरोबर है, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, वो करने में इंटरेस्ट भी आता है। तो ये हमेशा एक चीज गांठ बांध लो कि अगर आप बोर्ड में 12th स्टैंडर्ड में 100 में से 100 अकाउंट में मार्क लेना चाहते हो, तो बनती कोशिश ये रहे कि आप कैलकुलेशन खुद रफ पेपर पे करो, उसमें जितनी स्पीड आपकी सेट होगी वो फाइनल एग्जाम तक स्पीड फिर सेट रहेगी। अगर वो करके भी अगर आप 20 मिनट में छुड़ा रहे हो तो फिर ठीक है। अगर आप कैलसी के साथ 20 मिनट में छुड़ा रहे हो तो वहां से आधा घंटा एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए एक्चुअल एग्जाम में। किन किन लोगों ने कुछ कुछ ऑब्जर्व भी किया होगा ऑलरेडी, इसका खुद डेमो भी ले लिया होगा टर्म एग्जाम के वक्त। अगर अकाउंट्स का पेपर अगर आप कैलकुलेटर पे आदत हो और बाद में करते हो, कितनी डिफिकल्टी जाती। फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट कैलकुलेशन करते बैठे तो पेपर ही खत्म नहीं, तो कैलकुलेशन ही खत्म नहीं होती। तो हमेशा आदत वही रहे जो जिस हिसाब से हमारे नियम है। नो डाउट एमसीक्यू है, हमारे पास कैलकुलेटर है, लेकिन कैलकुलेटर पे गलती ना हो उसके लिए पूरा मेथड ठीक से समझने आना चाहिए। इसीलिए अभी बनती कोशिश जो प्रैक्टिस करवाना हो उसको पूरा स्टेप वाइज करो, ताकि फिर कैलकुलेटर करते वक्त भी गलती ना हो। एम आई ओके? राइट। सो मैंने गिवन को ठीक फॉर्मेट में लिख लिया। अब मुझे दो चीज चाहिए। पहला चीज क्या चाहिए? परसेंटेज चेंज इन डिमांड। दूसरा क्या चाहिए बेटा? अनिरुद्ध, ये तुम बुक की मारू करें, उठता हूं।
प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू पर्सेंटेज चेंज इन डिमांड. मम्मीला म्हण डब्यामध्ये जरा कमी दे म्हणायचं. पर्सेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके. इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, पहले फॉर्मूला लिख लिया मैंने, क्या था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यस और नो? नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? द परसेंटेज चेंज इन डिमांड. क्या कैलकुलेट करना है बेटा मेरे को? परसेंटेज चेंज इन डिमांड. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज इन डिमांड? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100. तो अभी मैंने ऊपर दिया है, न्यू क्वांटिटी कितना है मेरा? 15. ओल्ड क्वांटिटी कितना है मेरा? 10. 15 माइनस 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 100. So what is the percentage change in demand? 50%. Yes or no? Agree? So can I say due to reduction in price from 100 to 50, the percentage change in demand, the percentage change in demand is 50%. So am I quantifying the amount of change? 50% बदलाव हुआ है डिमांड में, right? So am I trying to quantify the amount of change? Yes. Am I trying to quantify the amount of change? Yes. इसीलिए elasticity is a tool which is used to measure the quantum of change or amount of change in demand due to the various determinants. Is it okay? Now I have calculated the percentage change in demand. I also have to find out the percentage change in price. सर परसेंटेज चेंज इन डिमांड समझ गया, क्वांटम ऑफ चेंज इन डिमांड समझ गया, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस को समझने की क्या जरूरत है? भाई 50% बदलाव प्राइस में हुआ है, लेकिन इस 50% बदलाव में प्राइस का कितना इंपैक्ट है ये समझना तो पड़ेगा ना. प्राइस का कितना इंपैक्ट है इस चेंज पे ये समझना पड़ेगा ना, क्योंकि वेरिएबल क्या है? प्राइस. वो समझने के लिए आपको को परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकालना पड़ेगा और इलास्टिसिटी की न्यूमेरिक वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी. और जैसे हम इलास्टिसिटी की न्यूमेरिक वैल्यू समझेंगे उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. पहले तो न्यूमेरिकल समझो, एक बार न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करो. एक बार न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उस न्यूमेरिक वैल्यू को रीड कैसे करना है मैं आपको कल के लेक्चर में सिखाऊंगा. इज इट ओके? इज इट ओके? राइट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसा है? न्यू डिमांड, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100. 15 माइनस 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 50%. ये कैलकुलेशन सबको समझ में आया? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 50%. नाउ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. व्हाट इज द न्यू प्राइस? 50. व्हाट इज द ओल्ड प्राइस? 100. 50 minus 100 upon 100 multiplied by 100 is equal to 50% or minus 50%? minus 50%. बरोबर है ना? प्लस 50 होता तो प्राइस बढ़ जाता, माइनस 50 यानी 100 माइनस 50%, 50 रुपीज. सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस? माइनस 50%. नाउ आई हैव कैलकुलेटेड द परसेंटेज चेंज इन डिमांड. I have calculated the percentage change in price. I have calculated the percentage change in demand. I have calculated the percentage change in price. Now let's try to calculate the impact of changes in price on the change in demand, which is calculated with the help of price elasticity, which is calculated elasticity or price elasticity is equal to percentage change in demand upon percentage change in price. हाँ या ना? अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस की दोनों भी वैल्यू मेरे पास है नहीं है? है नहीं है? है ना? सो फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यस और नो? अब वो कितना है? 50% डिवाइडेड बाय माइनस 50%. तो आंसर कितना आना है? 50 अपॉन माइनस 50 कितना आता है? -1. But this -1 is written as 1. Why? Because elasticity can never be negative. Elasticity can never be negative. Elasticity हमेशा पॉजिटिव मेजर की जाती है.
तो जब कभी भी इलास्टिसिटी की कैलकुलेशन में अगर माइनस साइन आता है तो माइनस साइन को इग्नोर किया जाता है, माइनस साइन को इग्नोर किया जाता है और उसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो -1 में माइनस को इग्नोर करो तो आंसर क्या बचा मेरा 1। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी 1। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी 1। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी 1। ये हुआ कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मेथड। अब ये बात तो दिमाग में खटकनी चाहिए, सर ये 1 क्या डिनोट करता है, व्हाट डज दिस 1 डिनोट। बरोबर, प्राइस इलास्टिसिटी 1 निकाल लिया अपन ने, परसेंटेज चेंज इन डिमांड 50 है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस -50% है। देखो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैन बी नेगेटिव। डिमांड बढ़ी तो पॉजिटिव है, प्राइस कम हुआ इसलिए नेगेटिव है। प्राइस अगर बढ़ेगा तो प्राइस पॉजिटिव होगा, डिमांड अगर कम हुई तो डिमांड परसेंटेज में नेगेटिव आई। तो दिमाग में बात बैठा लो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड या परसेंटेज चेंज इन प्राइस नेगेटिव हो सकता है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस नेगेटिव हो सकता है। दोनों में से एक कंपल्सरी नेगेटिव रहेगा क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स। अगर कोई वेरिएबल है, इनकम की हद बात करें, इनकम ऑफ कंज्यूमर में रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट पॉजिटिव। तो वहां पे परसेंटेज चेंज इन इनकम और परसेंटेज चेंज इन डिमांड दोनों तुमको पॉजिटिव दिखेंगे, वहां नेगेटिव कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन प्राइस की जब हम बात करें तो एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इन दोनों में से कोई भी वेरिएबल नेगेटिव आ सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा बेटा, इनवर्स है। ऐसा एप्लीकेशन चाहिए दिमाग का, ऐसा दिमाग दौड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? ट्रिकी है थोड़ा थोड़ा, राइट, ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा। अगर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो बिल्कुल ट्रिकी नहीं है। देव को देखो जैसे परेशान हो कॉन्सेंट्रेट करने में तो फिर ट्रिकी है। आपको बोला जाकर मुंह धो के आओ, वहीं वो रुमाल को लेकर ऐसे 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 चालू है, बाहर जाकर ठीक से मुंह धो के आओ, हाँ, मतलब बॉटल लो, बॉटल ही डालो सिर्फ पूरी, ठीक है। सो व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी इज 1। देखो दोपहर के क्लास में नींद तभी नहीं आएगी जब आपकी नींद पूरी हुई हो, और नींद पूरी तभी होगी जब रात को 11 बजे सोए हो। और आपको रात के 1-1, 2-2 बजे तक फोन खेलना है, स्नैप खेलना है, ये सब चीजें खेलना है, तो फिर सुबह दोपहर में नींद तो पक्का आएगी, 100% आएगी। मुझे खुद को भी प्रॉब्लम होती है, मैं किसी दिन रात में 2 बजे तक जाले तो सुबह 7, 7:30 बजे तो उठना ही पड़ता है, तो फिर दोपहर के लेक्चर में आलस आती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन अपना जो पूरा स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से अगर आपकी नींद पूरी रहेगी तो आप दिन में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। आफ्टरनून की क्लास होगी, क्लास की तैयारी रखो, आफ्टरनून की क्लास आपको ठीक तरह से करनी है, कॉन्सेंट्रेट करना है, तो आपको दोपहर में नहीं सोना है, दोपहर में आपको नहीं सोना है। और दोपहर में अगर आपको नहीं सोना है तो आपको रात को नींद ठीक तरह से लेनी चाहिए। रात को 11 बजे यानी 11 बजे साहब सो जाया करो, 8 बजे तक भी 7 बजे तक भी उठते हो तो आपकी 7-8 घंटे नींद हो जाए। जब आप 7-8 घंटे अच्छे से नींद ले लेते हो तो फिर आपका दिनचर्या ठीक रहेगा। अभी अपन सो रहे हैं रात के 2 बजे 3 बजे, सुबह 7 बजे उठ जा रहे हैं, मैथ्स का इंग्लिश का लेक्चर है, जो निकलते निकलते 8 बज जाते हैं, 4 घंटे की नींद ले रहे हो, फिर सुबह सुबह तो लेक्चर है, फिर बाद में दोपहर में खाना खा रहे हैं, खाने के टाइम तो नींद नहीं आती कि आपने फुकड़ की गप्पा चालू रहती, चाओ 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 चाओ, ये भी चालू है, वो भी चालू है, दोनों चालू है, ये भी चालू है, चाओ 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 चाओ। और फिर बाद में कंसेप्ट की बारी आई तो वो तो बेटा एकदा सख्त है कि इकडे भी नहीं धकडे ना, एकदम अटेंशन में। अल्ट्रा प्रो मैक्स हो बेटा तुम सोने में, और ऐसे एक दिन या रोज सोते हो तुम लेक्चर में, थोड़ा कम खाया करो। अब देखो उसे नींद इसलिए आ रही है क्योंकि ओबेसिटी है, अब उसके नींद की आने वाला तो काय तू झोपले नाही का रात्री बरोबर? हाँ, किती वेळ सोय कल रात में? हाँ, नक्की का? हाँ, कल दिवसभर प्रैक्टिस के लिए का? हाँ, अब उसका एक्सर्शन ज्यादा है, उसकी स्टेट लेवल की मैचेस उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, तो दिन भर में थकावट है। अब इतना ज्यादा एक्सर्शन है, क्लास चालू है, प्रैक्टिस चालू है, तो एटलीस्ट 8 घंटे की तो नींद चाहिए। अब बोल रही है 11 बजे, मुझे नहीं लगता है 11 बजे वो सोई होगी, 2-4-5-6 घंटे की नींद है, तो 5-6 घंटे की नींद में फिर ठीक तरह से नींद इतना एक्सर्शन रहेगा तो कहीं ना कहीं वो आएगा ना, फिर इकोनॉमिक्स के लेक्चर में आना है। हाँ, तो थोड़ा सा आपका फाउंडेशन आफ्टरनून में होगा, और ये टफ पार्ट है बोर्ड से। एक बार के बोर्ड में तो भी सो गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोपहर में सोया मत करो,
ठीक है, आदत लगा लो क्योंकि बहुत लंबा जाना है अपने को। परसेंटेज मेथड समझ में आया? परसेंटेज मेथड में हमने ये सीखा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इलास्टिसिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हैं। अब ये एक मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय वन, जैसे इसका सवाल है। वेरी गुड, यू आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट, नाइस, आई लाइक इट, यस। लेकिन बेटा थोड़ा सा सबर करो, समझाऊंगा। पहले हम न्यूमेरिकल समझेंगे, पहले हम न्यूमेरिकल समझेंगे, एक 10-12 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक 10-12 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद फिर मैं तुमको सिखाऊंगा कि इस न्यूमेरिकल वैल्यू को रीड कैसे करते हैं। इज इट ओके? चलो सबसे पहले न्यूमेरिकल कैलकुलेशन समझते हैं। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में जो पहला मेथड अपन ने सीखा वो क्या है बेटा? परसेंटेज मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, percentage change in demand is equal to new quantity minus whole quantity upon whole quantity multiplied by 100, percentage change in price is equal to new price minus whole price upon whole price multiplied by 100। हो है ना? है ना? अब बात आती है डायरेक्ट मेथड की, सबका फेवरेट, फट फट 2 मिनट में कैलकुलेटर पे आंसर। हम इसी का इस्तेमाल करेंगे एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए, क्योंकि अपने को आंसर फटाक से चाहिए, टाइम पास करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, राइट? सो व्हेनेवर यू विल बी आस्क्ड न्यूमेरिकल, you will either have to use this direct method or you will use the arc elasticity method, which is the thumb rule of the institute, which I'll be explaining you later। जब मैं arc elasticity method सिखाऊंगा तब मैं आपको उसका thumb rule बताऊंगा कि प्राइस का डायरेक्ट मेथड और आर्क मेथड में किस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। वो एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन पार्ट है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब डायरेक्ट मेथड में हम इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ट्रायंगल क्यू अपॉन एक मिनट, डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लेता हूं। फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड का? ट्रायंगल क्यू अपॉन ट्रायंगल पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू। ट्रायंगल क्यू अपॉन ट्रायंगल पी मल्टीप्लाइड बाय पी बाय क्यू। मैथ्स में ट्रायंगल देखा है कहीं पे? डेल्टा, डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट, ओके, डेल्टा डिटरमिनेंट, वो ठीक है। यहां पे ये ट्रायंगल जो है वो चेंज डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? चेंज। सो ट्रायंगल क्यू यानी चेंज इन क्वांटिटी, ट्रायंगल क्यू यानी चेंज इन क्वांटिटी। ट्रायंगल पी बोले तो चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस बाय क्वांटिटी। अब इस फॉर्मूला में ये जो प्राइस, बेटा ध्यान दो, इस फॉर्मूला में ये जो प्राइस और ये जो क्वांटिटी है बेटा, ये दोनों भी ओल्ड प्राइस और ओल्ड क्वांटिटी है। क्या है बेटा? ओल्ड प्राइस और ओल्ड क्वांटिटी। अब बात आती है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी, जैसे ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, ट्रायंगल क्यू यानी चेंज इन क्वांटिटी, ट्रायंगल पी यानी चेंज इन प्राइस। पी यानी ओरिजिनल प्राइस और यू कैन से ओल्ड प्राइस, ओरिजिनल प्राइस और ओल्ड प्राइस, एंड क्यू यानी ओरिजिनल क्वांटिटी और ओल्ड क्वांटिटी। इज इट ओके? राइट। अब बेटा चेंज इन क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं? चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। यस और नो? ट्रायंगल P is equal to न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। अभी क्लियर? अभी क्लियर? एग्जाम्पल वही रखते हैं। 100 रुपीज प्राइस, 10 इज द क्वांटिटी, न्यू प्राइस कितना है? 50, क्वांटिटी कितना है? 15। चलो आ जाओ। प्राइस गिवन क्या था बेटा अपने को? ये गिवन था अपने को, यस और नो? प्राइस 100, क्वांटिटी 10, प्राइस 50, क्वांटिटी 15। तो बेटा
ऊपर वाला क्या है, ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी, ओल्ड सर न्यू प्राइस, न्यू प्राइस। अग्री। फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू ट्राइंगल क्यू अपॉन ट्राइंगल पी, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय पी बाय क्यू। चेंज इन क्वांटिटी कैसा निकालते हैं अपन, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी कितना है मेरा 15 माइनस ओल्ड क्वांटिटी कितना है मेरा, माइनस ओल्ड क्वांटिटी कितना है मेरा 10, सर नो, तो कितना हुआ ये 5, यहाँ पे गलत है, -5 गलत हुआ वो, इट इज 5, कितना है वो 5, बराबर है। न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, तो दैट विल गिव मी चेंज्ड क्वांटिटी। पहले 10 क्वांटिटी बिकती थी, अब कितनी बिक रही है 15, तो एक्चुअल चेंज कितना हुआ 5, राइट। तो चेंज्ड क्वांटिटी कितनी है बेटा 5, दैट इज न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी कितनी है मेरी गणेश 15 माइनस ओल्ड कितनी है 10, 15 माइनस 10 5 क्या है मेरी चेंज क्वांटिटी है। अब इसके बाद डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस कितना बेटा, न्यू प्राइस क्या है मेरा 50, ओल्ड प्राइस कितना है मेरा 100, तो ये कितना हो बेटा -50, so this has to be -50, वो माइनस ऊपर का नीचे आ गया, तो this has to be -50, so 5 divided by 50 multiplied by price, प्राइस मतलब कौन सा ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस कितना बेटा मेरा 100 है क्या, राइट, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, मेरी पुरानी क्वांटिटी कितनी है 10, सो अभी इसका कैलकुलेशन करो, ये 2 0 कट हो गए, ये 2 0 कट हो गए, 1 by 1 is 1, 5 by 5 is 1, सो वापस से मेरा आंसर क्या आया 1। इज दिस आंसर टैलिंग विथ योर परसेंटेज मेथड आंसर, दैट मीन्स यू हैव डन द राइट कैलकुलेशन। डायरेक्ट मेथड और परसेंटेज मेथड में जो प्राइस इलास्टिसिटी हम कैलकुलेट करते हैं वो दोनों मैच या टैली होनी चाहिए। अगर आप परसेंटेज मेथड और डायरेक्ट मेथड के आंसर में अगर कुछ फर्क आ रहा है तो इसका मतलब आपने परसेंटेज मेथड या डायरेक्ट मेथड दोनों में से कोई एक मेथड में कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। समझ में आया, ये डिफिकल्ट है क्या, ये इजी है फटाक से, है ना। चेंज इन क्वांटिटी न्यू माइनस ओल्ड, चेंज इन प्राइस न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय पी बाय क्यू, ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी। समझ में आया, समझ में आया, सिंपल है। अब इलास्टिसिटी क्या आ गई मेरी 1, दोनों सिनेरियो में टैली हो गया मेरा, हुआ नहीं हुआ, हाँ या ना, टैली हुआ कि नहीं हुआ, राइट। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मेथड, विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मेथड एंड डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। अभी और 2 मेथड बाकी है अपने को जो फाउंडेशन में दी गई है, एक है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, एक है आर्क इलास्टिसिटी मेथड, जो हम आगे देखेंगे। अगर यही प्रॉब्लम लूं और अगर मैं आंसर को आर्क इलास्टिसिटी से निकालूं तो उसका कैलकुलेशन और उसका आंसर अलग आता है। डायरेक्ट मेथड के हिसाब से जो इलास्टिसिटी निकालता हूं उसकी वैल्यू अलग आती है, आर्क इलास्टिसिटी मेथड के हिसाब से जो वैल्यू निकालते हैं वो अलग आती है। सीए फाउंडेशन का इंस्टीट्यूट का रूल ये कहता है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है एमसीक्यू प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेशन का, तो आप आर्क इलास्टिसिटी से पहले कैलकुलेट करो। थंब रूल क्या है, पहले आर्क इलास्टिसिटी से इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करो। अगर आर्क इलास्टिसिटी से जो आपने आंसर निकाला है वो अगर 4 ऑप्शन में से वो रहेगा तो आपको वही आंसर लिखना है, राइट। मान लो प्राइस इलास्टिसिटी मेथड से जो कैलकुलेट कर रहे हो वो भी आंसर है और आर्क इलास्टिसिटी से कैलकुलेट कर रहे हो वो भी आंसर है, तो दोनों में कौन सा लिखना चाहिए, आर्क इलास्टिसिटी वाला लिखना चाहिए। थंब रूल ये कहता है कि जब भी प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट होगी, कैलकुलेशन प्रेफरेंस शुड बी फर्स्ट गिवन टू आर्क इलास्टिसिटी। इज इट ओके? तो उसका कैलकुलेशन कब रहेगा, तब मैं जब मेथड सिखाऊंगा तब का तब बताऊंगा। प्राइस इलास्टिसिटी का डायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेशन करते समझ गया, परसेंटेज मेथड समझ में आया। किसी कुछ इसमें पूछना है, किसी कुछ इसमें पूछना है क्या, आया ना। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, राइट। नाउ न्यूमेरिकल ऑफ डायरेक्ट एंड परसेंटेज मेथड। चलो इससे पहले कि मैं बाकी की 10 प्रॉब्लम आपको होमवर्क दूं, ये एक क्वेश्चन जो है आपको यहीं पर क्लास में सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट सॉल्विंग।
रफ में सॉल्व करो, कोई ब्रेक भी कुछ ना बेटा। अभी हो गया ये सॉल्व करो, घर जाओ, ब्रेक ही ब्रेक है। फिर इसके बाद कुछ नहीं लूंगा, इसके बाद डायरेक्ट प्रॉब्लम दे दूंगा, प्रॉब्लम देख के आपको सॉल्व करना है। देने की जरूरत नहीं, पीडीएफ में ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स है। अब देखो दो चीजें हैं, मेरे को पूरा स्टेप वाइज सॉल्विंग चाहिए। है पहले एक बार क्वेश्चन लिख लो। बेटा शॉर्टकट मत मारो, डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट चीजें मत लिखो। हाँ, प्राइस ऑफ अ रेडियो पूरा 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 लिखो, शॉर्टकट मत मारो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में शॉर्टकट कोई नहीं मारेगा, पूरा क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन द कंप्लीट क्वेश्चन। प्राइस ऑफ रेडियो है, या भी रफ में एक करो मेरे सामने, तो किसी कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। अगर वो समझ गया तो बच्चा ले 10 होमवर्क करना है आपको, इसमें और 11 प्रॉब्लम है, तो 11 प्रॉब्लम होमवर्क के तौर करने हैं तुम्हें। और प्लीज प्लीज हर किसी को सॉल्व करना है, जितने भी अभी 11 न्यूमेरिकल है, परसेंटेज मेथड, डायरेक्ट मेथड, दोनों भी मेथड से सॉल्व करने हैं। और जिस सिस्टमैटिक मैनर से मैंने फॉर्मूला कैलकुलेशन सब लिखे, उसी मेथड से लिखो। अगर इस तरह से ये 11 लिखोगे तो प्राइस समझेगा। माई प्रॉमिस टू यू इज, इफ यू जस्ट डू दिस प्रॉपरली, प्रामाणिक पने से, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, जितने भी टाइप बचे ना अभी सब समझ में आते, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक है, प्राइस को बदल के दूसरे वेरिएबल का नाम है कैलकुलेशन। ये है कैलकुलेशन, यही है। जितने भी मेथड इसमें है इलास्टिसिटी में, उन सभी मेथड में सेम कैलकुलेशन फॉर्मेट है, सिर्फ वेरिएबल का नाम बदले वाला है। राइट, क्वेश्चन लिख लिया बेटा सबने? हो गया क्वेश्चन लिखकर? बी फास्ट, बी क्विक, इतना याद रखो। फाइनल एग्जाम में आपको 1 मिनट है एक एमसीक्यू छुड़ाने के लिए। तो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन लिखना, डायरेक्ट गिवन लिखना, गिवन को सामने लिख के रखना रफ पे, और फिर कैलकुलेशन चार्ट काटना। क्योंकि कभी कभार हम नंबर लेने में गलती करते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो गिवन लिखने की आदत हमेशा रखो न्यूमेरिकल के लिए। झाला क्वेश्चन लिहून? हाँ, छोड़ाओ ना बिना देखे, दोनों मेथड से। परसेंटेज से पहले गिवन ऐसा लिख लो। गिवन कैसे लिखेंगे बेटा? प्राइस और क्वांटिटी, दोनों मेथड के फॉर्मूला तुमको मालूम है ना। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखना है तो लिख के ले लो, पहले डायरेक्ट मेथड से छुड़ा लो सब लोग। चलो फास्ट फास्ट वाले मेथड से। गिवन लिखा क्या सबने? गिवन लिखा है ऐसे, ऐसे गिवन लिखो पहले आपके क्वेश्चन में। गिवन क्या है? प्राइस 500, क्वांटिटी कितना बेटा? 80। प्राइस कितना है? 500, क्वांटिटी कितना है? 80, 400, 100। हो गया, गिवन लिख दिया। अब पहले लिखो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करो। फॉर्मूला क्या है उसका? प्राइस इलास्टिसिटी, ईपी और पीई लिखो। ईपी नहीं, पीई लिखो उसको बेटा। यहां जो ईपी लिखा है ना, इसे ईपी मत लिखो, पीई लिखो। पहले पी लिखो, पहले पी लिखो और फिर ब्रैकेट में ई लिखो, प्राइस इलास्टिसिटी। पीई इज इक्वल टू ट्राइंगल क्यू बाय ट्राइंगल पी मल्टीप्लाइड बाय पी बाय क्यू, where triangle Q is equal to new Q minus old Q. Triangle P is equal to new P minus old P. बरोबर है का? चलो अब अपने बाजू वाले के बुक में झांकना बंद करो और अपना अपना सॉल्व करो। Don't look into else's textbook or books, because if you do that, you won't be understanding the particular concept of elasticity. खुद से सॉल्व करो। अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे पूछिए। आई एम हेयर टू सॉल्व योर डाउट्स एंड क्वेरीज, बट प्लीज सॉल्व विदाउट लुकिंग इनटू योर बुक्स। आई विल शो यू आंसर, लेट एवरीवन सॉल्व। सभी लोगों को सॉल्व करने दो, मैं आपको आंसर बताऊं। चलो स्टार्ट सॉल्विंग फास्ट। राइट, चलो आई होप यू हैव सॉल्व द न्यूमेरिकल। सो लेट्स हैव अ लुक इनटू द सॉल्यूशन। जब कभी भी अपन गिवन लिख रहे हैं तो जिस तरह से मैंने गिवन लिखा है, ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी, ऐसा लिख लिया करो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी गलती होने की चांसेस कम रहेंगे। अभी सॉल्व करते हो डिटेल में सॉल्व करो। फाइनल एग्जाम में तो कैलकुलेटर है, डायरेक्ट ही सॉल्व करना है, लेकिन आदत सही रहेगी तो कैलकुलेटर भी सही चलेगा।
आपने बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो कैलकुलेटर तो गलत आंसर ही बताएगा। अगर न्यू को ओल्ड ले लोगे, ओल्ड को न्यू ले लोगे तो कैलकुलेटर भी उल्टा ही बताएगा, है ना, राइट। क्योंकि ओल्ड की जगह न्यू ले लिया, न्यू की जगह ओल्ड ले लिया तो पूरा कैलकुलेशन ही गलत हो जाता है। तो न्यू क्या है, ओल्ड क्या है, ये कैलकुलेटर से करो, किसे भी करो, इसे एक ठीक तरह से रफ में लिख लो कि न्यू क्या है, ओल्ड क्या है, और फिर कैलकुलेशन की शुरुआत करो। इज इट ओके, राइट। सो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस बाय क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी क्या है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। व्हाट इज माय न्यू क्वांटिटी 100 माइनस ओल्ड क्वांटिटी 80, तो कितना है मेरा 20, कितना है मेरा 20, यस और नो। सभी लोग अपने अपने सॉल्यूशंस को चेक कर लो, एवरीवन चेक योर सॉल्यूशंस। डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी क्या है मेरा, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी कितना बेटा मेरा 100, सर चेंज इन प्राइस, न्यू क्वांटिटी माइनस old quantity gives me change in quantity, that is 100 minus 80 which is equal to 20. Now change in price, change in price is equal to, change in price is equal to new price minus old price. What is the new price beta 400, what is the old price 500, 400 minus 500 it will be minus 100, it will be minus 100. So 20 divided by 100, that to be minus 100, multiplied by what is my old price 500, what is my old quantity 80। अभी क्या हो जाता मालूम है क्या, डायरेक्ट मेथड में एक ही जगह गलती होती, P बाई Q। वो क्या बोलता है, P क्या है 500, Q क्या है 400, 500 बाई 400 लिख देता। किसने की गलती है लिखते वक्त, नॉर्मली ऐसी गलती हो सकती है। क्या होता है, अपन फ्लो में रहते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखते हैं, गिवन में 500 दिख रहा, नीचे 400 दिख रहा, वो 500 400 ले लेता है। तो ऐसी गलती हो सकती है, ऐसी गलती हो सकती है। तो थोड़ा सा सतर्कता रखें, न्यू क्या है ओल्ड क्या है, क्योंकि न्यू ओल्ड की परिभाषा बदल गई तो पूरा कैलकुलेशन ही बदल जाता है, राइट। सो इट विल बी प्राइस, दैट इज ओल्ड प्राइस विच इज 500, ओल्ड प्राइस विच इज 500, क्योंकि ओल्ड की जगह तुमने न्यू ले लिया, फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। सो ओल्ड क्या है न्यू क्या है ठीक तरह से लिखो और फिर ही कैलकुलेशन की शुरुआत करो। शुरुआती दौर में अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो पूरा सिस्टमैटिक उसके अंदर गिवन में ही लिखो, ओल्ड क्या है न्यू क्या है, और फिर कैलकुलेशन की शुरुआत करो, ठीक है। डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस क्या है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। व्हाट इज द न्यू प्राइस 400 माइनस द ओल्ड प्राइस 500 इज माइनस 100, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस 500 डिवाइडेड, दैट इज ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी कितनी बेटा मेरी 80। So it is 20 by 100 multiplied by 500 divided by 80. So 100 ones are 100, 5s are 20, 1s are 20, 4s are, yes or no, is equal to 5 by 4. 5 by 4 कितना होता है बेटा 1.25। इतना बेसिक कैलकुलेशन तो तुमको आना चाहिए, इसकी उम्मीद मुझसे बिल्कुल भी मत रखना, ओके। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इतना बेसिक मैथ्स आपको आता है, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। सिटेरिस पेरिपस, सिटेरिस पेरिपस दैट ऑल माय स्टूडेंट्स नो द बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन। इज इट ओके, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एंड कांस्टेंट। आप समझ गए सिटेरिस पेरिपस कहां डालना है, अजम्पशंस में। आप ज्यादा क्लियरली समझा क्यों, राइट। अब परसेंटेज मेथड में क्या डिफिकल्ट था रे, डिफिकल्ट क्या था, इतनी बार तो बोला परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। नहीं तो इसके जैसे डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय न्यू क्वांटिटी, पूरा परसेंटेज ही बदल जाता। तो इसीलिए बेटर वे, जब भी आप ये 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे होमवर्क में, पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लो, क्योंकि वहां गलतियां नहीं होती। परसेंटेज मेथड में कुछ गलती हुई तो इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। वो कैसे समझेगा, आपका आंसर अगर डायरेक्ट मेथड से मैच नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, आपने कहीं ना कहीं गलती की है। इज इट ओके, इज इट ओके एंड फाइन, राइट। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल रहे अपन ध्रुव, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। सो न्यू प्राइस कितना मेरा 400, ओल्ड क्या है 500, 400 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या हुआ बेटा 100 डिवाइडेड बाय
500 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कैंसिल हो गया, इट विल बी 100 बाय 5 इज इक्वल टू 20%। कितना बेटा ये 20%, पर ये माइनस है, ये क्या है माइनस, क्योंकि ये -100 है। मैंने क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये नेगेटिव हो सकता है, इलास्टिसिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। तभी हमारा जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आया वो क्या आया, नेगेटिव आया है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्यों है, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, यस और नो। क्योंकि वो किसने बताया, हमने डायरेक्शन ऑफ चेंज किसने दिखाई, हमने लॉ ऑफ डिमांड ने, जिसने बोला है कि दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। यहां समझा क्या शान है, राइट। चलिए ये -20% रहेगा। Now change in demand, percentage change in demand is equal to new demand minus old demand upon old demand multiplied by 100। old demand की जगह old quantity, new quantity minus old quantity divided by old quantity multiplied by 100। new quantity कितनी है 100, old कितनी है 80, 100 minus 80 divided by 80 multiplied by 100, तो क्या होगा बेटा 20 divided by 80 multiplied by 100, yes or no। this is 1 za, this is 4 za is equal to 25%। तो velocity of price is equal to क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। रिया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना लाया हमने 25%, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना लाया हमने 20%। सो 25 divided by 20 is equal to 5 by 4 which is equal to 1.25। क्या मेरे दोनों आंसर टैली हो रहे हैं? क्या इलास्टिसिटी डिफिकल्ट है अगर आप ध्यान दे रहे हो? सो व्हाट इज इलास्टिसिटी? Elasticity of demand is a tool which is used to measure or quantify the amount of change in demand due to changes in its variable। जिसमें पहला हमने मेथड स्टार्ट किया है परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस which gives us the value of price elasticity which measures the changes in demand due to change in price, the variable price, right। तो सुन लो, अब इसके अंदर पूरे न्यूमेरिकल है, पूरे मेरे हिसाब से 11 या 12 कुछ न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन देखो, लगे तो जो दो मैंने सिखा दिए है, यस पूरे 11 क्वेश्चंस है, आंसर भी है, आंसर भी कॉपी करो, अगर तुम करते हो तो तुम गधे हो, अगर तुम करते हो तो तुम गधे हो, तुम गधे हो कि नहीं हो तुम सोचो, राइट। तो 11 न्यूमेरिकल है, 11 न्यूमेरिकल है। पहले दो, आज एक जो सॉल्व कर लिया वो, और जो क्लासरूम में इसके पहले पढ़ा है कंसेप्ट के वक्त वो, तो वो दोनों को लगे तो एक बार नोट्स में पढ़ो, किस तरह से लिखना है रेफर करो, और बच्चे वाले 10 एमसीक्यू बिना देखे, बिना कॉपी किए, बिना किसको पूछे खुद सॉल्व करो। ये एग्जाम्पल फिर से लिखने की जरूरत है अगर आपने उसको रफ में निकाला है तो, रफ में रहेगा ना, नोट्स की जगह कहाँ है अभी, नोट्स कंप्लीट थोड़ी हुई तुम्हारी। अगर आपने फेयर में लिखा है, अगर आपकी नोट्स के लिए जगह छोड़ी है तो फिर ठीक है, अगर आपने रफ में इधर उधर लिखा है तो ये वाला एग्जाम्पल और जो मैंने पढ़ा है एग्जाम्पल वो भी आपको लिखना होगा, राइट। प्लीज पूरे न्यूमेरिकल बिना देखे सॉल्व करना, क्योंकि जो बच्चा बिना देखे न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा सिर्फ वही स्टूडेंट कल क्लास में इलास्टिसिटी को समझ पाएगा। इज इट ओके? इज इट ओके एंड फाइन, राइट। So that's all for today. See you all tomorrow